अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं J24 न्यूज़। मैं हूं आपका दोस्त जिलानी। आप सबकी दुआ से मैं आपके सामने आज मुखातिब होने के लिए आया हूं। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के बाई इलेक्शन के एनालिसिस करने के लिए आपके लिए सामने आया हूं, लेकिन मेरे पेट में दर्द है अभी। लेकिन फिर भी आपके सामने मुखातिब होने के लिए आया, दुआ कीजिए। और ये जो प्रेजेंटेशन है वो तकरीबन वीडियो लंबा दिखेगा आपको, आधा घंटा 1 घंटा जाएगा वीडियो, लेकिन हर बात गौर करिए। ये 1 घंटे के वीडियो को आपका कीमती वक्त लगाकर 11 तारीख से पहले देखिए। शुक्रिया। హాయ్ హలో వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్, వెల్కమ్ టు J24 న్యూస్ అండ్ గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణ విత్ జిలాని. సో గుడ్ మార్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనకుండా, ఎందుకంటే ఈవినింగ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి. సో మీ అందరి ప్రేయర్స్ వల్ల, మీ అందరి దువా వల్ల, మీ అందరి ఆశీర్వాదాల వల్ల J24 న్యూస్ ప్రతి ప్రేక్షకుడు, ప్రతి సబ్స్క్రైబర్, నా ఫ్రెండ్స్, నా సహోదరులు, నా మిత్రులు, నా కుటుంబ సభ్యులు, నా వంశానికి చెందిన వాళ్ళు అందరూ, ప్రతి ఒక్కరూ, నేను హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు మీ అందరికి తెలుసు, ఒక సర్జరీతో ఎమర్జెన్సీగా నాకు ఒక తీవ్రమైన కడుపు నొప్పితో ఒక సర్జరీ నాకు జరిగింది, అపెండిక్స్ సర్జరీ. సో ఆ సర్జరీ ఉన్నప్పుడు గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణ ప్రోగ్రామ్ మీ మధ్యలో నేను రాలేకపోయాను. దాని తర్వాత నా ప్రతి అప్డేట్ మీ అందరికీ ఇస్తున్నాను. నా కోసం దువా చేసిన, నా కోసం ప్రార్థన చేసిన, నా కోసం విషెస్ చెప్పిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అండ్ నా కోసం హాస్పిటల్కి విచ్చేసిన మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి, జీవీజీ నాయుడు గారికి, అండ్ ఇస్లామిక్ స్కాలర్ అహ్మద్ నక్షబంది గారికి, గురువర్యులు షా గులాం నక్షబంద్ హఫీజ్ పాషా గారికి, అండ్ నా కోసం ప్రేయర్స్ చేసిన నా ఎస్ఎస్సి ఐజాక్ స్కూల్ బ్యాచ్, నా 2007 బ్యాచ్ మేట్స్కి, అండ్ ఆఫీషియల్స్ అందరూ చాలామంది, కర్ణాటకకి చెందిన వాళ్ళు, రాజస్థాన్కి చెందిన వాళ్ళు, జైపూర్కి చెందిన వాళ్ళు, బెంగళూరుకి చెందిన వాళ్ళు, ఆంధ్రాకి చెందిన వాళ్ళు, చాలామంది ఎమ్మెల్యేస్, మినిస్టర్స్ అందరూ చాలామంది కాల్ చేశారు. ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మీ అందరి దువా వల్ల 60-70% ఆల్మోస్ట్ క్యూర్లో ఉన్నాను నేను. యాక్చువల్లీ నేను ఇంకా 5 days 7 days రెస్ట్ తీసుకోవాలనుకున్నాను. డాక్టర్స్ నాకు అడ్వైజ్ చేసిన విధంగా నేను ఇంకా 7 days బెడ్ రెస్ట్లోనే ఉండాలి. కాకపోతే J24 న్యూస్ సబ్స్క్రైబర్స్, J24 న్యూస్ వ్యూవర్స్, నాకు ఆదరించే వాళ్ళు చాలామంది, జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గ ఎన్నికల కోసం మీరు మాట్లాడాలి అని చాలామంది నాకు కాల్స్ చేశారు. సో దీని పరంగా మీ ముందు ఈరోజు వచ్చాను. అండ్ జూబ్లీ హిల్స్ ఎన్నికలు ఒక నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నికలు లాగా కాకుండా ఒక రాష్ట్రానికి చెందిన ఎన్నిక లాగా ఈ ఎన్నిక జరగబోతుంది. సో దీని గురించి మాట్లాడడానికి ఈరోజు స్పెషల్గా మీ అందరి కోసం, నా హెల్త్ కాన్షియస్గా లేకపోయినా మీ అందరి కోసం మీ ముందు వచ్చాను. నా ఈ వీడియో హిందీ అండ్ తెలుగులో మిక్స్ చేసి ఇస్తాను, ఎందుకంటే జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గ ప్రజలు ఆల్మోస్ట్ హిందీ అండ్ తెలుగు అర్థం చేసుకుంటారు. సో అందుకోసం హింदी అండ్ తెలుగులో वीडियो ఇవ్వబోతున్నాను, डिटेल्स क्लुप्तंगा. सो सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम. मैं हूं आपका दोस्त जिलानी. जब मैं हॉस्पिटल में था, आप सबकी दुआ मेरे साथ थी, अल्हम्दुलिल्लाह. हर नाम लेकर मैं आपको शुक्रिया बोलना चाहता हूं. मैं जब हॉस्पिटल में था तो मेरे सबसे पहले अल्लाह के करम से, अल्लाह के रसूल की करम से, आप सबकी दुआ से, खास हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत शाह गुलाम नक्शबंद हफीज़ पाशा साहब के फैज़ व करम से, मेरे माँ बाप की दुआ से, और हॉस्पिटल तशरीफ़ लाने वाले सारे लोगों से, मेरे दोस्तों से, J24 न्यूज़ सब्सक्राइबर से, मेरे दोस्त जो भी जयपुर, बेंगलुरु, मुंबई, महाराष्ट्र में और चेन्नई से जितने भी लोग कॉल्स करें, मुझे दुआ दिए, और मेरे स्कूल के, मेरे कॉलेज मेट्स, स्कूल मेट्स, जितने भी लोग मुझे मैसेजेस के ज़रिए और कॉल्स के ज़रिए दुआ दिए, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. डॉक्टर्स के एडवाइस के मुताबिक मुझे अभी 10 दिन बेड रेस्ट में रहना है, लेकिन आप सबके सामने आने का मकसद यही है कि जुबली हिल्स इलेक्शन, काफ़ी लोग मुझे कॉल कर ये बोले कि जुबली हिल्स इलेक्शन के बारे में जिलानी भाई आप बात करिए. तो मैं आपके सामने आज जुबली हिल्स इलेक्शन के बारे में बात करने के लिए आया हूँ, मुखातिब हो रहा हूँ. सो जुबली हिल्स इलेक्शन एक देखा गया तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी का बाई इलेक्शन है,
जो कि इसके पिछले एमएलए मागंटी गोपीनाथ साहब का इंतकाल होने के बाद ये इलेक्शन आया। तो ऐसा होना था कि कुछ इलेक्शंस में ऐसा होता कि अगर कोई इलेक्टेड पर्सन अगर मर गया तो यूनानिमस, थोड़े एक टाइम ऐसा था यूनानिमस इलेक्शन हो जाता था, उनके फैमिली मेंबर्स को किसी को डिक्लेयर किया जाता था, नॉमिनेशन डालते थे, अपोजिशन पार्टीज नॉमिनेशन नहीं डालते थे, वो यूनानिमस जीत जाते थे। लेकिन हालात ऐसे चेंज हो गए अब जुबली हिल्स में कि इमीडिएटली मागंटी गोपीनाथ मरने के बाद में जुबली हिल्स में बाई इलेक्शन कब आता बल्कि इंतजार करे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन आ गया, डेट आ गई। उसके बाद मागंटी सुनीता बीआरएस की कैंडिडेट को टिकट दिया गया। उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी से नवीन यादव साहब का नाम डिक्लेयर किया गया। उसी तरह बीजेपी ने लंकाला दीपक रेड्डी, पिछले 2023 के इलेक्शन में भी लंकाला दीपक रेड्डी बीजेपी से जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में कंटेस्ट किए थे। तो उस इलेक्शन में भी मागंटी गोपीनाथ जीते थे, जब कांग्रेस से मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब जो माजी क्रिकेटर है इंडिया टीम के, उनको इस टिकट दी गई थी और मागंटी गोपीनाथ के हाथ में उनकी हार हुई। तो उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट में आई, जैसा कि आप सबको मालूम है। अब जुबली हिल्स का इलेक्शन, क्यों भाई एक जुबली हिल्स के इलेक्शन में लोग इतना तड़प रहे, इतना देख रहे, इतना इंटरेस्टिंग इलेक्शन, इतना टेंशन भरा इलेक्शन। और पिछले मैं समझता हूँ 2023 के इलेक्शन में जो जनरल असेंबली इलेक्शन था 119 कॉन्स्टिट्यूंसीज का, उतनी बेताबी नहीं थी जितना जुबली हिल्स इलेक्शन पे अब चल रही। तो पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा कि भाई डाले तो किसको डाले वोट। पब्लिक बहुत होशियार है, लेकिन सिनारियोस, एक इलेक्शन कहीं भी चला तो ये बोल सकते थे कि भाई ये इलेक्शन में कौन जीतने वाले हैं, कौन हारने वाले हैं। लेकिन जुबली हिल्स का इलेक्शन जब मार्केट में जा रहा, हकीकत में बोला गया तो सर्वे रिपोर्ट्स को एक बाजुक रखते हुए मद्देनजर की मैं बात करा तो जुबली हिल्स इलेक्शन में कौन जीत रहा भाई बोले तो नहीं बोल सकते भाई, ये जवाब आ रहा, क्योंकि टफ इलेक्शन है, नेक टू नेक कंपटीशन है। अब लाजमी बात है कांग्रेस वाले बोलते हम जीत रहे, लाजमी बात है बीआरएस वाले बोलते हम जीत रहे, और ये भी लाजमी बात है कि बीजेपी वाले भी बोलते कि हम जीत रहे। लेकिन यहाँ के वोटर्स 3,98,99,000 अप्रोक्सीमेटली है, और इसमें अनकरीब 1,35,000 वोट मुसलमान के हैं। मैं और एक बार बोलूँ, 3,98,99,000 अप्रोक्सीमेट कुछ वोट्स है जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के, जिसमें 1,35,000 अप्रोक्सीमेट वोट्स जो है मुस्लिम माइनॉरिटीज के है। माइनॉरिटीज बोले तो फिर पूरे माइनॉरिटीज को नहीं, ओनली मुस्लिम माइनॉरिटीज पर में मुस्लिम माइनॉरिटी वोट्स 1,35,000 है। तो जुबली हिल्स की जीत और जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी की हार डिसाइड करने वाले लोग माइनॉरिटीज है, मुस्लिम्स। तो आज माइनॉरिटीज को लेते हुए दोनों पार्टियों में सरगर्मियां पैदा हो गई है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में जितनी मोहब्बत आज तक नहीं थी, पिछले 10-11 साल जब बीआरएस हुकूमत में थी 2014 से 2023 तक, इतनी मोहब्बत केटीआर साहब को, केसीआर साहब को माइनॉरिटीज से नहीं दिखी जो आज पैदा होकर आ रही माइनॉरिटीज में। 2023 में जब दिसंबर में तेलंगाना राष्ट्र में इलेक्शन हुआ, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने उसके बाद, तो 20 महीने 22 महीने ऑलमोस्ट हो रहा, लेकिन ये 22 महीने में मोहब्बत नहीं दिखी माइनॉरिटीज की रेवंत रेड्डी साहब को भी। वो जो मोहब्बत आज दिख रही है जुबली हिल्स का बाई इलेक्शन अनाउंस होने के बाद में। तो क्यों भाई बोले तो क्योंकि जुबली हिल्स की जीत और हार माइनॉरिटीज के ऊपर डिपेंड है, वो भी मुस्लिम माइनॉरिटीज के। जुबली हिल्स में 7 डिविजन्स है। शेखपेट से शुरू करता हूं मैं। शेखपेट, वेंगलराव नगर, सोमाजीगुड़ा हाफ पार्ट आता, उसमें थोड़ा पार्ट आता, पूरा सोमाजीगुड़ा नहीं आता, और हाफ पार्ट खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में आता, जो कि दानम नागेंद्र एमएलए है। फिर उसके बाद यूसुफगुड़ा, रहमत नगर, बोराबंडा, एरागड्डा। इसमें शेखपेट और एरागड्डा ये दोनों कॉर्पोरेटर्स एमआईएम के हैं। तो शेखपेट में फराज साहब कॉर्पोरेटर है एमआईएम से, और एरागड्डे में कॉर्पोरेटर साहब का इंतकाल हो गया था, शरीफ साहब के अहलिया का। उसके बाद पहले शरीफ साहब का इंतकाल हुआ, उसके बाद में कॉर्पोरेटर साहब शाहीन बेगम का भी इंतकाल हो गया। लेकिन माइनॉरिटीज का वहां पर एक अच्छा बेस है एमआईएम का। अब ले लीजिए बोराबंडा। बोराबंडे में कॉर्पोरेटर बाबा फसीउद्दीन साहब है, और उसी तरह बाबा फसीउद्दीन पिछले 10 साल 2023 से पहले उनकी लाइफ बीआरएस से शुरू हुई,
और 2023 में जब से इलेक्शन में बीआरएस पार्टी हुकूमत से निकल गई, वो कुछ रीजंस की वजह से बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में आ गया। तो उसी तरह सीएन रेड्डी कॉरपोरेटर है रहमत नगर के, और दीगर दो भी कॉरपोरेटर्स है। तो यहाँ पर रहमत नगर, एर्रागड्डा, बोराबंडा, शेखपेट, मैं बता दूं आपको, ये शेखपेट, ये वेंगलराव नगर, ये यूसुफगुड़ा, ये रहमत नगर, ये बोराबंडा, ये एर्रागड्डा, ये सोमाजिगुड़ा का पार्ट। तो शेखपेट ऑलमोस्ट अबव 50% से शायद मैं समझता हूँ माइनॉरिटीज कवर करता, मुस्लिम्स। और बोराबंडा भी ऐसी रहता, एर्रागड्डा भी ऐसी रहता, रहमत नगर भी ऐसी रहता। वेंगलराव नगर बोले तो थोड़े बीजेपी के वोट्स आने के चांसेस है इधर, और यूसुफगुड़े में भी थोड़े बीजेपी के वोट्स आने के चांसेस है। तो अब ये बोला जा रहा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमान को पिछले 22 महीने में क्या करी, क्यों कांग्रेस पार्टी को जिताना है, ये किसका कहना है? अपोजिशन स्ट्रांग जो है बीआरएस पार्टी का। बीआरएस पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी पिछले 22 महीने में क्या करी मुसलमान के लिए, और बीआरएस पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया मुसलमान को, और बीआरएस पार्टी का कहना है कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया, एंड कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पिछले 10 साल में बीआरएस ने धोखा दिया मुसलमान को। तो क्या सच और क्या गलत, इसमें कंफ्यूज है थोड़े लोग। मैं बोलना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी आकर 22 महीने हो रहा, 6 गारंटीज को हम इंप्लीमेंट करते बोल के हुकूमत में आए। वो 6 गारंटीज मैं आपको बता रहा हूँ। गृह ज्योति, जो कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में 200 के यूनिट के अंदर अगर करंट का बिल आएगा तो आपको फ्री में दिया जाएगा। ये एक रईतो भरोसा, किसान के लिए हर साल 15,000 दिया जाएगा। ये चेयुता 4,000 रुपये हर औरत को, यानी जो भी पेंशनर्स है उनको 4,000 रुपये हर महीना दिया जाएगा। और आरोग्यश्री जो है वो 10 लाख तक लिमिट बढ़ा जाएगा। ये अभी जो पेंशन है 2,000 3,000, उसको 4,000 तक बढ़ाने का ऐलान किया था रेवंत रेड्डी साहब ने। और इंदिरम्मा इंड्लू, जो घर नहीं है उनको घर का जगह देना, प्लेस देना, और जिसको जमीन है वो घर नहीं बना सकते उसको 5 लाख रुपए देना। और तेलंगाना मूवमेंट में जो भी स्ट्रगल करे वो लोगों को 250 गज का घर देना। और महालक्ष्मी, महालक्ष्मी स्कीम एक ऐसा स्कीम है जब रेवंत रेड्डी साहब ने ऐलान किया है कि हर महीना एक घर में जितने भी लेडीज है वो लेडीज को 2,500 रुपये दिया जाएगा हर महीना। 2,500 ప్రతి మహిళకి తెలుగులో చెప్తా, గృహజ్యోతి 200 ప్రతి యూనిట్ కి, ప్రతి ఇంటికి 200 యూనిట్లు ఉచిత కరెంటు, మరియు రైతు భరోసా ప్రతి ఏటా 15,000 రూపాయలు, 12,000 రూపాయలు వ్యవసాయ కూలీలకు, చేయూత 4,000 రూపాయల నెలవారీ పింఛన్ అండ్ 10 లక్షలు ఆరోగ్యశ్రీ బీమా. అదే విధంగా ఇందిరమ్మ ఇల్లు లేని వారికి ఇంటి స్థలం, ఎవరికైతే ఇండ్లు లేదో, సొంత ఇల్లు లేదో వాళ్ళకి ఇంటి స్థలం ఇవ్వడం, ఒకవేళ ఇల్లు ఉంటే వాళ్ళకి కట్టుకోవడానికి 5 లక్షలు ఇవ్వడం. సో 5 లక్షల్లో ఇల్లు కట్టుకోవచ్చా లేదా అనేది సెకండరీ, కానీ ఇస్తామనే మాట అయితే ఇచ్చారు. అదే విధంగా తెలంగాణ ఉద్యమకారులు ఎవరైతే ఉన్నారో, తెలంగాణ మూవ్మెంట్ కోసం, ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం ఎవరైతే పోరాడారో, చనిపోయారో, వాళ్ళ ఆత్మ బలిదానాలు చేశారో వాళ్ళకి 250 చదరపు గజాల ఇంటి స్థలం ఇస్తాము తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అని ఇది కూడా ఒక హామీ ఇచ్చారు. అదే విధంగా మహాలక్ష్మి మహిళలకు ప్రతి నెల 2,500 నుంచి 2,500 ఇస్తాము. ప్రతి స్త్రీ ఎవరైతే ఉంటారో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రతి స్త్రీకి ప్రతి నెల 2,500 ఇస్తాము అని చెప్పారు. అయితే 2 విధాలు, ఇక్కడ పెన్షన్ తో 4,000 పెన్షన్ ఇస్తాము. ఎవరైతే విడోస్ ఉన్నారో, ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్స్ ఉన్నారో, ఇంకా వేరే రకాల పెన్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి 4,000 చేస్తామన్నారు. ఇంకోటి 2,500 అన్నారు. ఈ 2,500 స్कीम की लिमिटेशंस ఏమీ పెట్టలేదు. हिंदी में भी बोल रहा हूँ, 2 स्कीम्स लेडीज के लिए अनाउंस किया गया था, एक महालक्ष्मी और एक चेयुता. चेयुता में जिसको ऑलरेडी पेंशन मिल रहा है उनको पेंशन 4,000 दिया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, और जो भी लेडीज है उनको 2,500 दिया जाएगा. 18 साल के ऊपर जो भी लेडीज है उनको हर महीना, चाहे वो कुछ भी लिमिटेशंस नहीं है वो स्कीम में, जब बोले तो वैसा मैनिफेस्टो में वो कुछ भी लिमिटेशंस नहीं है, हर 18 साल की औरत जो पार करने के बाद में उनको 2,500 रुपये दिए जाएंगे. तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, लेडीज इसमें
दो तरह से बेनिफिट होने वाले थे। एक विडो, पेंशनर्स, हैंडीकैप्स जो भी है, और नॉर्मल लेडीज, दो लेडीज को भी बेनिफिट बताया गया है इसमें। गौर से सुनो मेरी बात, రెండు రకాల లేడీస్ లకి, అంటే ఒక 18 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత, పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత ఎవరైనా విడోస్ అయిపోతే, భర్త చనిపోతే వాళ్ళకి పెన్షన్, అండ్ సీనియర్ సిటిజన్ ఏ విధంగా అయినా ప్రతి ఒక్క ఆడ మనిషికి, ప్రతి ఒక్క మహిళకి దీంట్లో బెనిఫిట్ చూపించారు. కాకపోతే ఆ 4000 కూడా ఇప్పటివరకు ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు, ఈ 2500 కూడా ఇప్పటివరకు ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు. समझ में आ रही मेरी बात आपको? दो तरह से लेडीज को इसका बेनिफिट बताया गया था। एक, शादी नहीं हुए से वाले लेडीज रहते, शादी हो गए से वाले लेडीज रहते। शादी हो या ना हो, हर लेडीज को 2500 देता हूं बोल के बोले थे रेवंत रेड्डी साहब। उसके बाद अब शादी होने के बाद जिस किसी का भी शोहर का इंतकाल हो गया, विडो हो गए, फिजिकली हैंडीकैप हो गए, या फिर उम्र दराज हो गई, 60 साल, 55-56 ईयर्स हो गए, उनको भी ओल्ड एज पेंशन आता। ये दोनों के बेनिफिट्स बताए। तो औरतें किसी भी हाल में, वो शादी हो या ना हो, 18 साल के ऊपर जो भी लेडीज है उनको बेनिफिट्स है। तो ये भी इंप्लीमेंट नहीं करे, वो भी इंप्लीमेंट नहीं करे। उसके बाद యువ వికాసం, విద్యార్థులకు 5 లక్షల విద్యా భరోసా కార్డు ప్రతి మండలంలో, తెలంగాణ इंटरनेशनल स्कूल्स, हर स्टूडेंट को 5 lakhs का विद्या भरोसा कार्ड देता हूँ। और तेलंगाना में हर मंडल में अब फर्ज करो खैरताबाद, शेखपेट 2 मंडल से अपने को, जुबलील्स में हर मंडल में दो हर मंडल में एक इंटरनेशनल स्कूल देता हूं बोल के बोले। तो ये कांग्रेस पार्टी के ऐलान इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुए बोल के बीआरएस पार्टी आके प्रचार कर रही। एट द सेम टाइम बीआरएस 10 साल थी जब वो लोग कुछ भी नहीं करे बोल के कांग्रेस वाले बोल रहे। लेकिन यहाँ पे कैसा था सिचुएशन बोले तो, बीआरएस पार्टी 2014 में हुकूमत में आई, आते ही इमीडिएटली शादी मुबारक स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन करे और ओवरसीज स्कॉलरशिप्स एंड पेंशन का भी इंतजाम करे। लेकिन बीआरएस पार्टी 2014 में जब रूल में आने के बाद में एक नेक्स्ट टास्क आके था वो लोग के पास, क्या बोले तो 2016 में जीएचएमसी इलेक्शन था। जीएचएमसी इलेक्शन में कई सा भी कॉर्पोरेटर्स बीआरएस के जीतना बोल के टास्क और टारगेट लगा लिए थे बीआरएस वाले। उस वास्ते इमीडिएटली आते ही इमीडिएटली जो है, जो वादे किए थे उसको इम्प्लीमेंटेशन कर दिए थे। और रेवेन्यू जो था तेलंगाना स्टेट का, तो पहले कितने डिस्ट्रिक्ट थे, आंध्रा और तेलंगाना मिले हुआ था। रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा हैदराबाद से होता, तो हैदराबाद का रेवेन्यू पूरे आंध्रा और तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड होता डेवलपमेंट के वास्ते। तो जब तेलंगाना सेपरेट हो गया तो वो क्या हो गया, सिर्फ तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट्स को ही वो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होता, क्योंकि सेपरेट हो गया, बाइफरिकेशन हो गया, स्टेट बाइफरिकेशन होने के बाद में आंध्रा को तेलंगाना का बजट नहीं जाता। तो जब खजाने में पैसे थे इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेशन करा गया। तो दूसरा एग्जाम्पल बता दो, 1 कुंटल बिरयानी में, 1 कुंटल अगर बिरयानी बना ली एक दावत में, तो इसमें 1000 आदमी खाए तो कैसा खाते, और वही 400-500 आदमी खाए तो कैसा खाते। तो क्वांटिटी जो है, मैदाद जो है वो बढ़ जाती। तो उसी तरह तेलंगाना का जो बजट हैदराबाद से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था, वो रेवेन्यू पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होता था, उसमें आंध्रा के डिस्ट्रिक्ट्स भी थे। जब 2014 में बीआरएस गवर्नमेंट आ गई तो बजट जो है सिर्फ तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट्स को आता था, तो खजाने में पैसे थे। जब इमीडिएटली स्कीम्स को इम्प्लीमेंटेशन करा गया, कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया गया, शादी मुबारक दिया गया, पेंशन्स दिया गया, पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करा गया, हर चीज गए। टास्क भी था वो लोग को 2016 में कॉर्पोरेशन में जीतना, कॉर्पोरेशन में मेयर उनको रहना, उनका रहना, टास्क इम्प्लीमेंटेशन करे वो लोग, सक्सेसफुली करे। उसके बाद 2016 में उनका मेयर भी बना और डिप्टी मेयर भी माइनॉरिटी कैंडिडेट को दिया, बाबा फसीउद्दीन को, हैदराबाद के। 2016 में जैसा टास्क इम्प्लीमेंटेशन करके वो लोगों को टारगेट और टास्क जो था मेयर बनाना, डिप्टी मेयर बनाना, वो मेयर और डिप्टी मेयर बीआरएस पार्टी बना दी, काउंसिल उनके हाथ में रख ली। ऑलमोस्ट कॉर्पोरेटर्स ग्रेटर हैदराबाद में टीआरएस पार्टी, जब टीआरएस पार्टी थी, टीआरएस की बनी। उसके बाद में के जो सरगर्मियां थे वो अलग थे। तो जब जीएचएमसी इलेक्शंस आने से पहले डबल बेडरूम देते, रेशन कार्ड देते बोल के एप्लीकेशंस लिए गए थे मी सेवा में, हजारों लोग, लाखों लोग मी सेवा के पास लाइन लगाकर 40-40 रुपए
60-60 रुपए 100-100 रुपए देकर अप्लीकेशंस करे थे। तो उस वक्त फिर इलेक्शन कोड आते ही क्या हुआ, उसको रोक दिए। रोकने के बाद में अब बाद में देते डबल बेडरूम, बोले डबल बेडरूम और रेशन कार्ड। लेकिन 10 साल में अब बोलते गए तो उसके बारे में बहुत चीजें हैं। मैं अब वीडियो आजकल के लोग ज्यादा नहीं देखते बल्कि शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। तो एनालिसिस है ये, आप लोग वीडियो गौर से देखो, सब समझ में आता कि किसको चुनना है, किसको वोट डालना है और किसको नहीं डालना है, किसको सेलेक्ट करना है, किसको डिससेलेक्ट करना है, ये आपके हाथ में। बताना सिर्फ मेरा काम है। तो 2016 में एक टास्क जीत गई बीआरएस। जीतने के बाद, जीतने से पहले हैदराबाद में ऑलमोस्ट टीडीपी के एमएलए जीते थे। चंद नाम बताता हूँ, जैसे कि कुगटपल्ली एमएलए है माधवरम कृष्णाराव, और विवेक साहब जो है, और कुतबुल्लापुर के शेरलिंगमपल के अरकपुड़ी गांधी, सनत नगर के तलशानी श्रीनिवास यादव, जुबली हिल्स अब जो इलेक्शन चल रहा मागंडी गोपीनाथ टीडीपी से जीते, और राजेंद्र नगर टीडीपी से जीते। पूरे जीते भी जीते, ऑलमोस्ट टीडीपी के लोग जीते। तो जब भी टीडीपी के लोग बीआरएस में आ गए, आने के बाद में वो कॉरपोरेशन इलेक्शन लगा गया। लेकिन 10 साल में बीआरएस पार्टी रेशन कार्ड सी नहीं दी। बेसिक नेसेसिटी है, बिलो पॉवर्टी लाइन के जितने भी लोग हैं उनकी बेसिक नेसेसिटी क्या है, रेशन कार्ड्स। आरोग्यश्री कार्ड होना, किसी को भी हॉस्पिटल में जेरे इलाज होना फ्री में, बोले तो आधार कार्ड दिए तो नहीं करते वो लोग। रेशन कार्ड आपके पास है या नहीं है बोलकर देखते। तो वो रेशन कार्ड्स के एप्लीकेशंस लिए 100% एप्लीकेशंस लिए तो 10 या 20% एप्लीकेशंस को अप्रूव करे, 80% रोक दिए, नहीं दिए। एप्लीकेशन की फीस तो पब्लिक से लिया गया था। ये मेजर फेल्यूर है, लेकिन इसको ऑन ट्रैक पे आने नहीं दिए। उसके बाद डबल बेडरूम के एप्लीकेशंस भी लिए, लेके कॉर्पोरेशन इलेक्शन आने के बाद फिर असेंबली इलेक्शन तक देते बोल के पब्लिक थी, असेंबली इलेक्शन तक भी नहीं दिए। असेंबली इलेक्शन में कहीं एक विलेज में शायद कोई डिस्ट्रिक्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़े डबल बेडरूम्स दिए। फिर असेंबली इलेक्शन भी कैसा करे, एक्चुअल देखा गया तो 2019 में असेंबली इलेक्शन आना अपने स्टेट में 5 इयर्स को। लेकिन एक साल पहले 2018 में सिर्फ तेलंगाना का असेंबली इलेक्शन कराए, जब डिसॉल्व कर दिए गवर्नमेंट। क्यों करे बोले तो अपोजिशन पार्टी को वक्त नहीं दिए, कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी अपोजिशन हो, उसको वक्त नहीं दिए, उन लोगों का उभरने का वक्त नहीं दिए। इमीडिएटली 2018 में डिसॉल्व कर दिए, जब का जब फिर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन दे दी, इलेक्शन आ गया, इलेक्शन कर दिए, खत्म कर दिए, फिर बीआरएस फॉर्म पे आई। तो ये 4 साल में जब फेल्यूर क्या करी कांग्रेस बोले तो जब पब्लिक में जा नहीं सकी। अभी वक्त है ना, आखिरी के 1 साल देखेंगे बोल के, लेकिन थोड़े लोगों को अंदाजा था इमीडिएट इलेक्शन रखते केसीआर साहब बोल के। तो जब 4 साल में इलेक्शन होके 2018 में इलेक्शन हुआ, 2019 में पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ। तो यहाँ पे एक मेजर साइड ट्रैक है ये, 2018 में इलेक्शन होना, फिर से बीआरएस को पार्टी को पब्लिक जिताना। अब पब्लिक क्यों जिताई बीआरएस को फिर से बोले तो क्योंकि डबल बेडरूम की एप्लीकेशन है, रेशन कार्ड है, पेंशन 4000 दिए, जब शादी मुबारक के पैसे दिए, ओवरसीज स्कॉलरशिप्स दिए, बच्चों को स्कॉलरशिप्स के पैसे दिए, और रमजान का तोहफा दिए, और क्रिश्चियंस को क्रिश्चियंस का तोहफा दिए। ये सब चीजें ला लेके माइनॉरिटीज को माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स भी दिए, ये सब ला लेके अपोजिशन को मौका नहीं दिए, कहीं भी नहीं देके 2018 में इलेक्शन लगाए। फिर 2018 में भी कांग्रेस पार्टी कंटेस्ट करी, बीजेपी भी कंटेस्ट करी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की फिर से हार हो गई। होने के बाद 2019 में कोविड आया, फिर 20 में क्या करे, कॉर्पोरेशन को डिसॉल्व करे। कॉर्पोरेशन को डिसॉल्व करके भी ज्यादा वक्त नहीं दी, यहाँ भी होशियारी करे, ज्यादा वक्त नहीं देके 15 या 20 दिन का वक्त ही है भाई, 15 या 20 दिन का वक्त ही, अच्छा याद है मुझे, देके इमीडिएटली नोटिफिकेशन लगा। ये तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथ में रहता ना, तेलंगाना उनके हाथ में रहता तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन जीएचएमसी कॉर्पोरेशन को नोटिफिकेशन दे दिए। फिर से जो कैंडिडेट्स, ऑलमोस्ट जो कैंडिडेट्स थे विच कैंडिडेट्स को फिर से कॉर्पोरेशन में विच कैंडिडेटों को टिकट दिए, जिता लिए। यहाँ भी अपोजिशन को मौका नहीं दिए, कैंपेनिंग का भी मौका नहीं दिए, अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट करने का भी मौका नहीं दिए, पब्लिक में अपोजिशन पार्टी जाने का मौका भी नहीं दिया। फिर क्या हुआ, फिर कांग्रेस बाहर हो गई, फिर काउंसिल में फिर बीआरएस आ गई। अब मैं ये सब कई को बता रहा हूँ बोले तो आगे बोलता हूँ आपको। यहाँ से मूवमेंट चलते गया, वहां से डेवलपमेंट जब रुकता गया, जब 2023 में इलेक्शन आना है बोले तो 2022 2023 थोड़े डबल बेडरूम्स पब्लिक को दिए, थोड़े डबल बेडरूम्स पब्लिक को देकर रेशन कार्ड्स तो नहीं दिए, लेकिन तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स, रमजान का तोहफा, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी,
और दीगर जो भी स्कीम्स है उसको अच्छी तरह इम्प्लीमेंटेशन करे, पेंशन्स भी दिए। लेकिन पेंशन्स में भी एक क्या प्रॉब्लम करे बोले तो जब 2016 में, 14 में, 15 में जो एप्लीकेशंस लिए वही एप्लीकेशंस को पेंशन्स दिए, फिर नया एप्लीकेशन लिए क्या पेंशन के वास्ते बोले तो नहीं लिए, वही आज बताए, आज लेते या कल लेते, कल लेते या परसों लेते बोल के नहीं लिए, नए पेंशन को एप्लीकेशंस नहीं लिए, जो इंतजार में रह गए वो इंतजार में है आज तक भी। तो ऐसी हालात में माइनॉरिटीज थोड़े नाराज थे। क्यों माइनॉरिटीज नाराज थे बोले तो मुसलमान के 8 मस्जिदों को शहीद किया गया था बीआरएस के पीरियड में, एक खाना मस्जिद, सेक्रेटरिएट की मस्जिद और दिगर 6 मसाजिद को शहीद किया गया था। हर चीज में सक्सेस हुई क्या बीआरएस गवर्नमेंट बोले तो आज केटीआर साहब बोलते हर चीज में हम सक्सेस हुए बोल के, लेकिन 12% रिजर्वेशन में फेल हो गया। जैसा तेलंगाना में बीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद में दलित को मुख्यमंत्री बनाते बोले, यहाँ पे फेल हो गया। हर घर में गवर्नमेंट नौकरी रहती बोले, उसमें फेल हो गया। मेजर 12% रिजर्वेशन में फेल हो गया। फेल होना एक अलग बात है। तो जब केसीआर साहब एक मीटिंग में थे तो उस मीटिंग में एक आम आदमी का सवाल था कि केसीआर साहब कब देते रिजर्वेशन, क्या हुआ 12% का बोल के पूछे तो केसीआर साहब क्या बोले, बैठो बैठो, तुम्हारे को नहीं तुम्हारे बाप को बोलते बैठो बोले। ये एक फेल्यूर है। देखने के लिए सोशल मीडिया में छोटा सा इंसिडेंट, एक कॉमेडी दिखी, लेकिन बहुत लोगों में गलत इंपैक्ट गया है। 12% रिजर्वेशन में फेल हो गए, दलित को मुख्यमंत्री बनाते बोले उसकी आवाज ही नहीं है। जो आज कांग्रेस मैनिफेस्टो में 6 गारंटीज को रखी, जो तेलंगाना मूवमेंट में उद्यमकारुలు जो भी लड़ाई कर, जब जो भी मेहनत करे तेलंगाना के सेपरेट तेलंगाना होने में, उनको आप जमीन देते बोले, उनकी फैमिली में हर फैमिली में आप जो है एक जॉब देते बोले, वो नहीं दिए। कोदंड राम, तेलंगाना मूवमेंट में केसीआर एक है तो कोदंड राम एक है। हर जगह कोदंड राम साहब को लेके केसीआर मूवमेंट चलाए, कोदंड राम नहीं है तो केसीआर नहीं है। मेरी नजर हर मूवमेंट में ओयूजेएसी से तेलंगाना का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ओयूजेएसी को चलाए तो कोदंड राम चलाए। यहाँ पे फेल हो गए। कोदंड राम को आप एक सिंपल एक कौन सा पोस्ट भी नहीं दिए, और एक बार बोले आप सरपंच को भी नहीं जीत सकता कोदंड राम बोल के। यही गलती आज तेलंगाना में फिर कांग्रेस गवर्नमेंट भी कर रही है। फिर कोदंड राम साहब नहीं चाह रहे हुकूमत में रहना या कोई चीज में रहना, वो नहीं मालूम, लेकिन ये लोग नहीं रखना चाह रहे, वो अपन को नहीं मालूम। परसों भी कोदंड राम को एमएलसी दिए थे, आमिर अली खान को एमएलसी दिए थे। दोनों के खत्म होने के बाद फिर मिनिस्ट्री देना था कोदंड राम को, एजुकेशन मिनिस्टर शायद कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे वो, उसमें फेल हो गई गवर्नमेंट। उसमें भी गवर्नमेंट फेल होने के बाद, उसमें भी गवर्नमेंट फेल होने के बाद कोदंड राम को एमएलसी देकर मिनिस्ट्री नहीं दिए, ये भी फेलियर है कांग्रेस गवर्नमेंट का। वो फेलियर बीआरएस गवर्नमेंट में भी था। मेजर फेलियर्स में इसको भी बता सकते। सो इसके बाद जैसा बोला मैं 12% रिजर्वेशन, ऐसे कई चीजें हैं जो बीआरएस गवर्नमेंट छुपा रही। ये सब चीजों को पब्लिक नजर में रख लेके उसी वक्त में पब्लिक में गुस्सा था, पब्लिक में एक अलग तरफ का वहम था कि भाई इस वक्त बीआरएस को हराएंगे, केसीआर साहब को हराएंगे। और तेलंगाना एक पार्टी ऐसी है, एक मुद्दा बोलना चाह रहा हूँ, तेलंगाना एक ऐसी पार्टी है टीआरएस जो कि तेलंगाना स्टेट फॉर्म अलग होने के लिए ही पैदा हुई। हमारा एम एंड हमारा ऑब्जेक्ट तेलंगाना को हासिल करना ही है, इससे आगे कुछ भी नहीं है बोल के तेलंगाना का मूवमेंट स्टार्ट करे वो लोग। लेकिन जैसा जैसा हुकूमत में उनकी ख्वाहिश बढ़ती गई, पैसा बढ़ते गया, आमदनी बढ़ती गई, ऐसा फखर बढ़ते गया, हिमाकत बढ़ते गई, तकब्बुर बढ़ते गया, सब बढ़ते गया। उसके बाद टीआरएस जाके बीआरएस नाम लगाए। एक स्टेट को संभालना छोड़ के मैं पूरे हिंदुस्तान को संभालूंगा बोल के समझे केसीआर साहब। मेजर फेलियर। भाई आप पार्टी टीआरएस क्यों लगाए थे? तेलंगाना स्टेट फॉर्म करने के वास्ते ही ये पार्टी पैदा हुई बोले आप। తెలంగాణ మనుగడ కోసం పుట్టిన పార్టీయే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అని చెప్పిన కేసీఆర్ గారు 8 సంవత్సరాలు అధికారంలో ఉన్న తర్వాత 8వ 9వ సంవత్సరంలో కాదు టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ గా మారబోతుంది, దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో మా పార్టీ రాబోతుంది, నిన్ను ప్రధానమంత్రిని అవుతాను ఒక రోజు అని కేసీఆర్ చెప్పారు. అది మేజర్ ఇంపాక్ట్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ కేసీఆర్ గారికి. తెలంగాణ మనుగడ కోసం పుట్టిన పార్టీ తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ కోసమే ఉండాలి ఎల్లప్పుడు, కానీ మీరు టీఆర్ఎస్ ని బీఆర్ఎస్ గా మార్చి మేజర్ ఫెయిల్యూర్ అది భావించి పబ్లిక్ ఇక్కడ కూడా మీకు సైడ్ ట్రాక్ అయ్యారు. సో ఇవన్నీ ఒక్కతే అయితే
ఏ జిలాని గారు J24 న్యూస్ లో ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకు అని చెప్తే, నేను చెప్పేది ఏమంటే ఇవన్నీ ఫెయిలియర్స్ లో ఉన్న పార్టీలు. అప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు నేను ప్రతి మహిళకి ఇవన్నీ కోపాలు పెట్టుకున్న పబ్లిక్ ప్రజలు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు కేసీఆర్ గారి మీద పెట్టుకున్న ఇదంతా కోపం ఏం చేశారంటే 2023 इलेक्शन లో చూపించారు. 2023 के इलेक्शन में पब्लिक बता दी, ये गुस्से का जो नजरिया है वो 2023 में बता दी. क्यों बताई ये भी रीजन बता दो. 6 गारंटीज, 5 गारंटीज जो भी कांग्रेस 6 गारंटीज का है वो इम्प्लीमेंटेशन होता होगा. रेवंत रेड्डी साहब आते होंगे, हर औरत को 2500 देते होंगे, 200 यूनिट फ्री देते होंगे और उसके बाद में जो है हमारे डेवलपमेंट्स हो जाते, अच्छा होता तेलंगाना राज्य, सबको भरोसा आता. और जब एक अफवाह भी चली, अफवाह है ये सही है, मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि बीआरएस बीजेपी मिले भी है बोले, तो यहाँ पर पब्लिक क्या करी बोले तो एक आस में आ गए. रेवंत रेड्डी साहब हर घर को 200 यूनिट फ्री देते करंट, और रैतु भरोसा आता, 2000 का पेंशन 3000 का पेंशन 4000 हो जाता, डबल बेडरूम सिंधरम्मा इल्लू के नाम से आ जाते और हर औरत को 2500 रुपये आ जाते, 500 रुपये में गैस सिलेंडर आ जाता, माइनॉरिटीज को डेवलपमेंट्स होते बोल के पब्लिक आस में आके तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को जिताई. लेकिन हैदराबाद की पब्लिक इतनी चालाक से फिर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बीआरएस को ही वोट डाली, बीआरएस को भी जिताई. क्योंकि हैदराबाद में फ्लाईओवर्स होने दो, आईटी सेक्टर होने दो, ये डेवलपमेंट्स बीआरएस के हुकूमत में अच्छे थे. अब अपन आ जाएंगे जुबली हिल्स इलेक्शंस. जुबली हिल्स इलेक्शंस में अब ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी, लाजमी बात है कि हम जीतते बोल रहे, बीआरएस हम जीतते बोल रहे, मागंटी सुनीता का जो भी कैडर है वो हम जिता रहे हमारे कैंडिडेट को बोल रहे, नवीन यादव साहब का जो भी कैडर है वो हम हमारे कैंडिडेट को जिता रहे बोल रहे. लेकिन आप देखो जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में हुकूमत कांग्रेस पार्टी एक अच्छे कैंडिडेट को, नवीन यादव को टिकट दी. अब नवीन यादव एक रौडी शीटर है, चिन्ना श्रीशैलम यादव एक रौडी शीटर है, उनकी फैमिली एक रौडीइज्म फैमिली है बोल के एक अफवाह बीआरएस पार्टी मार्केट में लेके जा रहे, बीआरएस के पार्टी के कैंडिडेट्स लेके जा रहे. अब सही में नवीन यादव रौडी शीटर है क्या बोले तो कोई भी पुलिस स्टेशन में नवीन यादव का रौडी शीट नहीं है. अलबत्ता उनके वालिद उनके जो फादर है उनके ऊपर जो है रौडी शीट है. परसों जो बैंड ओवर भी हुआ उसमें उनका भी नाम है. वो एक जमाने के केसेस है, रौडी शीट है उनके ऊपर. अब ये बात अलग है कि भाई वालिद रौडी अगर है तो बेटा रौडी होता क्या? तो दुनिया में बहुत सारे ऐसा लोग है जिसका वालिद रिक्शा चलाने वाला रहता, बेटा डॉक्टर है, जिसका बाप रिक्शा चलाने वाला रहता, उसका बेटा कलेक्टर है, जिसका वालिद रौडी शीटर रहता, उसके बेटे आज अच्छे अच्छे पोजीशंस में है. और ऐसे भी है जिसका वालिद बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करता, आज उन्हें एमएलए एमपी भी है, SC ST फैमिलीज में है, माइनॉरिटीज में भी है. अब ये नहीं हो सकता कि भाई बाप एक टाइम रौडी शीट थे तो बेटा भी रौडी शीट है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है. नवीन यादव 2014 में यही जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन में MIM पार्टी से ठहरे थे. कुछ वो कम सरस वोटों से MIM पार्टी से हार जाने के बाद में 2018 में फिर से उन्होंने इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट करे. लेकिन 2014 में हार गए तो क्या 2018 तक पब्लिक की खिदमत में ये नवीन यादव नहीं थे बोले तो ऐसा नहीं है. मेरे को जहां तक मालूम है नवीन यादव मेरे भी अच्छे दोस्त है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन में नवीन यादव मेरे को पैसे दिए क्या, लिफाफा आया क्या, अकाउंट ट्रांसफर हुआ क्या, ऐसा नहीं है. तहकीकात कर सकते आप. हकीकत बताना चाह रहा हूं, नवीन यादव 2014 में हार भी गए तो पब्लिक की खिदमत में था बंदा. हो जो भी नवीन यादव के पास जाता था, एक्सपेक्टेशन आज नहीं तो 10-15 दिन के बाद तो भी उनके पास से रिजल्ट आता था. ये पब्लिक की जुबानी है. तो उसके बाद में उन्होंने कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी ठहरे, रहमत नगर में, शायद 2016 में. रहमत नगर का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, ये जो भी GHMC का इलेक्शन था उसमें कॉन्टेस्ट करे थे बेचारे. उसमें भी बीआरएस के कैंडिडेट शफी के हाथ में हार गए. हारने के बाद में उम्मीद तो नहीं हारा बंदा, 2014 में MLA के जैसा ठहरा, दुनिया का पैसा खर्चा करा, फिर 2016 में कॉर्पोरेशन में ठहरा, उम्मीद नहीं हारा, जब भी सेकंड पोजीशन में आया. फिर 2018 में फिर MLA के जैसा ठहरा. उस टाइम क्या हुआ बोले तो फ्रेंडली MIM विद BRS चल रही थी. तो उस वक्त असद साहब ने, MIM के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने टिकट ऐलान नहीं करे नवीन यादव. नहीं करने पर उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के जैसा नॉमिनेशन डाल के कॉन्टेस्ट कराए, हिम्मत से कॉन्टेस्ट करे वो मागंटी गोपीनाथ के ऊपर. लेकिन जब भी कुछ वोट से वो हार गए. फिर मागंटी गोपीनाथ जीते.
जीतने के बाद पब्लिक में नहीं थे क्या? बोले तो जब भी पब्लिक में थे। अब समझो 2014 में जो आदमी हारा इतनी उम्मीदों से, फिर 2016 में कॉर्पोरेशन में भी कंटेस्ट करा, 2018 में फिर एमएलए के जैसा ठहरा, फिर एमएलए के जैसा हार गया इंडिपेंडेंट। लेकिन एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सेकंड प्लेस में आना बोले तो बहुत बड़ी बात है। जब मागंटी गोपीनाथ फर्स्ट प्लेस में था तो रीजनल पार्टी नहीं, नेशनल पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट पी विष्णुवर्धन रेड्डी अपोनेंट था नवीन यादव को। नवीन यादव को एक तरफ अपोनेंट विष्णुवर्धन रेड्डी और एक तरफ अपोनेंट मागंटी गोपीनाथ। तो एक नेशनल पार्टी का लीडर जिसके वालिद का नाम पूरे तेलंगाना में नहीं हिंदुस्तान में एक अच्छा नाम है, पीजीआर, उनका बेटा पीवीआर, उनके अपोनेंट में, दोनों के अपोनेंट में नवीन यादव इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहने पर थर्ड प्लेस में आना था। लेकिन सेकंड प्लेस में आके विष्णुवर्धन रेड्डी को थर्ड प्लेस में लेके गए। जब सेकंड प्लेस में विष्णुवर्धन रेड्डी आया उतने वोट्स लिए, सेकंड प्लेस में नवीन यादव आया उतने वोट्स लिए, विष्णु को थर्ड प्लेस आया। जब तो जब भी हार गए तो भी पब्लिक में था। उसके बाद 2023 का इलेक्शन आया तो जब नवीन यादव इंडिपेंडेंट से ठहरे तो एमआईएम के चीफ जो है नवीन यादव को सस्पेंड करे थे पार्टी से, पार्टी के रूल के खिलाफ गए। एमआईएम में रहने पर आप इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन नहीं डाल सकते, डालने पर आपको सस्पेंड किया गया बोल के सस्पेंड कर दिए थे। उसके बाद में हालात क्या हुए, 2023 का इलेक्शन आया। 2023 के इलेक्शन में नवीन यादव फिर टिकट की ख्वाहिश करे कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होकर। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब इंडियन फेमस क्रिकेटर अजहरुद्दीन को जुबली हिल्स का टिकट दिया, जुबली हिल्स का टिकट अजहरुद्दीन को देने के बाद में नवीन यादव फुल फ्लेज सपोर्ट करे उनको। लेकिन जब जो पब्लिक का लहर था, जो पब्लिक की सोच थी, फिर से मागंटी गोपीनाथ को पब्लिक जिताई। वहां पर मागंटी गोपीनाथ को पब्लिक जिताने के बाद में जिस दिन मागंटी गोपीनाथ नॉमिनेशन डाले थे जब भी डायलिसिस पेशेंट थे, जिस दिन जीत का ऐलान हुआ उस दिन भी गोपीनाथ डायलिसिस पेशेंट थे, उसके बाद भी पेशेंट थे। फिर मागंटी गोपीनाथ को कई को टिकट दिए वो केटीआर साहब को मालूम। उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। फिर ये बाई इलेक्शन है, ये बाई इलेक्शन में फिर से अजहरुद्दीन टिकट की ख्वाहिश करे, नहीं आए। फिर नवीन यादव को असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम से सपोर्ट मिला, दूसरे दीगर लोगों से भी सपोर्ट मिला। जो भी हो नवीन यादव यहाँ की टिकट ला लिए, ला लेके पब्लिक में जा रहे। अब बीआरएस वाले क्या बोलते हैं, पिछले 10 साल 12 साल में, 10 साल 12 साल में मागंटी गोपीनाथ जो डेवलपमेंट करे वो दूसरी पार्ट, वो इतना डेवलपमेंट है कि वो डेवलपमेंट से फिर से मागंटी सुनीता को वोट डालते लोग बोल के। अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूं कि भाई मागंटी गोपीनाथ अगर 10-12 साल में डेवलपमेंट करते थे तो मुसलमान को आज कब्रिस्तान की जरूरत कई को रहती थी। 12 साल में कब्रिस्तान की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई जुबली हिल्स की पब्लिक की, माइनॉरिटी मुस्लिम की। आज 1,35,000 वोट है बोलकर जो केटीआर साहब हर डिवीजन में रोड शो लगा रहे, हर डिवीजन में रोड शो हो रहा केटीआर का। ऐसा फिर कांग्रेस का नहीं हो रहा बोलते ना, एक हुकूमत में है सो कांग्रेस पार्टी। देखो आप एक चीफ मिनिस्टर, 14 मिनिस्टर्स, 50 एमएलए, 12 एमएलसी, 20 चेयरमैन मिलके एक हुकूमत में है जो पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने तो एक कैंडिडेट के पीछे आ रहे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को डर है कि शायद जुबली हिल्स अपने हाथ से निकल जाएगा। अगर पिछले 22 साल में कांग्रेस पार्टी के डेवलपमेंट्स अच्छे रहते थे सारे तेलंगाना के स्टेट में, तो आज ये 14 मिनिस्टर्स, 50 एमएलए, 12 एमएलसी, 20 चेयरमैन जरूरत नहीं रहती थी जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ये इलेक्शन नवीन यादव का मागंटी सुनीता का नहीं होता, ये इलेक्शन बीआरएस और कांग्रेस का है। समझ में आ रहा ना आपको? नवीन यादव कैंडिडेट के लायक से देखा गया तो बहुत अच्छा कैंडिडेट है, बहुत बेहतरीन कैंडिडेट है। लेकिन इसी टाइम पब्लिक में गुस्सा कई को है बोले तो 22 साल से 2,500 रुपए देते बोले लेडीज को आज तक नहीं दिए, पेंशन 4,000 करते बोले आज तक नहीं करे, हर घर को 200 यूनिट फ्री देते बोले उसमें 50% ही इम्प्लीमेंट हुआ, 50% नहीं हुआ बोल के कहावत है, चल रहा मार्केट में। और मैं भी देखा है तकरीबन लोगों को 200 यूनिट्स फ्री नहीं आ रहा। आज ही एक वाकया मेरे सामने पेश आया कि भाई 198 यूनिट्स उनको बिल आया। मैं बताने तैयार हूं आप सबको, 198 यूनिट्स उनको बिल आया, जगतीरी गुट्टे का किस्सा है ये। 198 उनको यूनिट्स का बिल आया, तो बिल है 1100-1000 रुपए कुछ। तो मैं यही से बात करा, कंसर्न यही से मैं बात करा, बिल पे नंबर था यही पे
एई का नंबर था, तो मैं कंसर्न एई से बात करा, क्यों आया बोले तो नहीं पिछले 2-3 महीने पहले उन्होंने 220 यूनिट जलाए थे, तो वो हमारा सिस्टम जो है ऑटोमेटिक रैंडमली जो है ऑटोमेटिक जो है सिस्टम हमारा जो है एवरेज यूनिट्स ले लेता, उसलिए आपको 198 जले तो भी बिल आया बोल के बोल। फिर क्या फायदा है भी स्कीम रहने का? आप इलेक्शन मूवमेंट चल रहा तो जगतिरी गुट्टा के लोग जुबली हिल्स वालों के रिश्तेदार नहीं रहते क्या? ये मेजर मिस्टेक्स। उसके बाद और क्या क्या स्कीम्स बोले, यहाँ देखो 2,500 बोले, इसमें फेल हो गए। और जिसको इंदिरम्मा इल्लू देते बोले, आप आते कि पहले इंदिरम्मा फॉर्म्स भरो बोल के हुकूमत आते कि बोले लाइन में ठहरे लोग, लाइन में ठहर के सर्किल ऑफिसों में वार्ड ऑफिसों में लाइन लगा के ठहरे लोग, वो लोगों को नाराज करे। और ये जैसा कि 200 यूनिट का बोला मैं, रईतु भरोसा बोले इसमें फेल हो गए, युवा विकास हम बोले इसमें फेल हो गए। ये सो फेल्यूर्स का नतीजा आज बीआरएस को ताकत बनाना है। ये फेल्यूर्स के कांग्रेस पार्टी का फेल्यूर्स का नतीजा आज बीआरएस को ताकत बन गया। फिर इतने दिनों में 22 महीने में एक माइनॉरिटी मिनिस्टर भी नहीं दिए। माइनॉरिटीज की तकलीफ बोलने के वास्ते, माइनॉरिटीज के जरूरत बोलने के वास्ते एक माइनॉरिटी मिनिस्टर आ जाता स्टेट में, जो माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री चलाता। दूसरे मिनिस्टर्स भी माइनॉरिटीज को दे सकते। कैंडिडेट नहीं है क्या बोले तो आमिर अली खान को एमएलसी दिए थे, शब्बीर अली थे आपके पास, और दूसरे लोग हैं, दूसरे लोगों को लेके मैंने आज जो जिसको एमएलए भी नहीं है, एमएलसी भी नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं है, अजहरुद्दीन साहब, उनको लाके कैबिनेट में रखे। पहले मिनिस्टर के जैसा शपथ लेने लगे, उसके बाद में पोर्टफोलियो दिए। चलो बहुत अच्छी बात है, पोर्टफोलियो दिए माइनॉरिटीज को। लेकिन 22 महीने कहाँ गई ये मोहब्बत? आप अगर जब चाहते थे तो यही अजहरुद्दीन को जब दे देते थे, ये शब्बीर अली साहब को जब दे देना था, आमिर अली खान को दे देना था, कोदड़राम को मिनिस्ट्री देना था, फिरोज खान को मिनिस्ट्री देना था, टेमरिस फहीम कुरैशी को दे दिए, एक टेमरिस का चेयरमैन, दूसरे हर काम में, हुकूमत के हर काम में तशरीफ लाते। खैर जो भी है, माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट्स में फहीम कुरैशी साहब है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, चल रहा। लेकिन ये मोहब्बत अगर पिछले 22 महीने में कभी भी होती थी, तो आज ये जो तकलीफ सहना पड़ रहा जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक तरफ बोले नए नए हम लोग जीतते, कैसा भी जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी, कैसा भी कांग्रेस पार्टी जीतती बोले, लेकिन डर है। वो डर कई को है बोले तो ये जो 6 गारंटीज है इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करे, और ये 6 गारंटीज को इम्प्लीमेंटेशन नहीं करके इसकी वजह बीआरएस पब्लिक में लेके जा रही, ये रीजन को पब्लिक बता रही, पब्लिक में बीआरएस पार्टी केटीआर साहब बता रहे। इसलिए जो है आज कांग्रेस और बीआरएस में एक कॉन्स्टिट्यूंसी का बाई इलेक्शन है, एक स्टेट के इलेक्शन के जैसा है। और इसमें दूसरे सरगर्मियां क्या है बोले तो जुबली हिल्स इलेक्शन अगर हार गए तो शायद रेवंत रेड्डी साहब सीएम नहीं रहेंगे तेलंगाना के बोल के भी एक, तो इसलिए हर डिवीजन को एक इंचार्ज मिनिस्टर, पोलिंग बूथ लेवल पे चेयरमैनों को, बीआरएस पार्टी भी कांग्रेस पार्टी भी, कांग्रेस पार्टी तो हुकूमत में, हुकूमत के बीआरएस के चेयरमैन को, एमएलसीज को, मिनिस्टर्स को, एमएलसीज को कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे डिवीजनों में बूथ लेवल पे इंचार्जेस लगे। उसी तरह बीआरएस पार्टी भी पिछले प्रीवियस मिनिस्टर्स को, प्रीवियस एमएलएस को, प्रीवियस चेयरमैन को लगाए। लेकिन पब्लिक में क्या टॉक जा रहा बोले तो सर्वेस डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन ले रहे, लेकिन जो भी सर्वे चल रहा है उसमें 5% 10% वेरिएशन आता, लेकिन सर्वे जैसा बताते, रिजल्ट वैसा आता बोले तो मैं भरोसा नहीं करता हूँ। जुबली हिल्स में एक साइलेंट वोटिंग होने वाली है। मागंटी सुनीता को पब्लिक जिताते क्या बोले तो मागंटी गोपीनाथ करे सो कामा पूरे डेवलपमेंट है बोल के आप लोग बोलते हैं। मैं ये बोलता हूँ मागंटी गोपीनाथ मुसलमान को डेवलपमेंट करे, अच्छा देखे बोल के, मागंटी गोपीनाथ कुछ भी नहीं करे। जो भी करे हुकूमत में जब पार्टी थी केटीआर केसीआर के, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स थे उसको इम्प्लीमेंटेशन में करे। अगर मागंटी गोपीनाथ करते थे तो कब्रिस्तान की जरूरत का आज जरूरत नहीं पड़ती थी, रोड पे नहीं आते थे लोग कब्रिस्तान के वास्ते, मुसलमान के कब्रिस्तान के वास्ते। एक एसपीआर हिल्स वहां पे जो भी रहमत नगर है, वो रहमत नगर में एक ईदगाह के वास्ते जमीन देके मैं वो कर दिया मुसलमानों को, मैं वो कर दिया, मैं वो कर दिया, मैं वो कर दिया बोल के मागंटी गोपीनाथ बताते थे। लेकिन वो भी जगह सिर्फ ईदगाह के लिए नहीं दिए वहां पे, वहां बोनालू आए तो बोनालू सेलिब्रेशंस कर लो, बतकम्मा आए तो बतकम्मा सेलिब्रेशंस कर लो, ईद आई तो ईद की नमाज पढ़ लो, मल्टीपल टास्क पे उसको यूज कर लो बोल के बोले। लेकिन एक ही ईदगाह के लिए उसको अलॉट नहीं करे, ये जहां तक मेरे को इन्फॉर्मेशन मालूम है। और रही बात पेंशंस
शादी मुबारक, ये तो स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जिधर कांग्रेस का एमएलए था, बीजेपी के एमएलए था, उधर भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था, इधर भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था। यही बाबा फसीउद्दीन को मागंटी गोपीनाथ सताए जब, यही एम ए शफी को मागंटी गोपीनाथ सताए जब, और एक कॉर्पोरेटर है विंगल नगर का, मेरे को नाम है, उनको भी मागंटी गोपीनाथ सताए। उनका वजूदी चलना, थोड़े रौडी शूटर्स को लेके चले मागंटी गोपीनाथ साहब। आज जो रौडीइज्म, रौडी शूटर को कैंडिडेट दिए बोल के बीआरएस पार्टी बोल रही, केटीआर साहब बोल रहे, मागंटी गोपीनाथ जब जुबली हिल्स के कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए थे तो उनकी हुकूमत पूरी रौडी शीटरों से चला है। उन्होंने नामा नहीं बोलना चाह रहा हूं। फिर मागंटी सुनीता एक कुछ जीता है तो तेलंगाना में हुकूमत चेंज हो जाती क्या बोले तो नो चांस। बोलने के बातें हैं पूरे, नो चांस। रेवंत रेड्डी सीएम रहते न रहते बोले तो ये डाउट है, क्योंकि काफी सीनियर कांग्रेस लोग रेवंत रेड्डी से नाराज है, ये बात है। और ये सब एक है, तो दूसरी तरफ परसों एक रहमत नगर में जो है, ये देखो रेवंत रेड्डी साहब क्या बोल रहे हैं रहमत नगर के रोड शो में, कांग्रेस है तो मुसलमान है। सुनो, कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है, जब कांग्रेस नहीं है अब कुछ नहीं है। कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है, कांग्रेस है तो आप कुछ भी नहीं। तो कांग्रेस है तो मुसलमान है कहते, कांग्रेस है तो मुसलमान की इज्जत है कहते, कांग्रेस नहीं है तो मुसलमान कुछ भी नहीं है कहते। अब ऐसा बोलना चाह रहे थे या गलती से बोले वो नहीं मालूम, लेकिन बोल तो दिए, गलत बात बोले। फिर इसके दूसरे दिन एक स्टेटमेंट शायद फहीम कुरैशी और दूसरे माइनॉरिटीज के लोग जो भी है वो लोग रेवंत रेड्डी साहब को बोले होंगे, रेवंत रेड्डी साहब आप गलत बोले, आप फ्लो में बोल दिए क्या भी बोले, लेकिन लोगों के सामने गलत इम्पैक्ट जा रहा है इसका, आप गलत बोले बोल के बोले होंगे, लाजमी बात है फहीम कुरैशी बोले होंगे। तो उसके बाद फिर और एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने। सो उसके बाद फहीम कुरैशी साहब बोले या कौन बोले वो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन दूसरे दिन फिर ये स्टेटमेंट है, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब, ये ऐसा बोले, ऐसा नहीं वैसा बोलना था, मैं गलत करा, मेरे से गलती हो गई माफ करो बोल के तो रेवंत रेड्डी साहब नहीं बोले, लेकिन मेरा मतलब ऐसा था बोल के बोले। अब उनके दिल में क्या था, दिमाग में क्या आया और जबान से क्या बोले वो अल्लाह बेहतर जाने, उनका दिल बेहतर जाने, लेकिन इससे बहुत लोग नाराज हो गए। तो पहले रेवंत रेड्डी साहब क्या करना था, कल प्रेस मीट लगाया, माफी तो मांग लेना था, माफी तो मांग लिए तो पब्लिक में शायद दूसरा वजूद जाता था, लेकिन ये बोलने से, उसका काउंटर इसको देने से बेहतर मेरे से गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं वैसा बोलने वाला था, मेरे को माफ कर दो बोल के एक छोटे अल्फाज मुसलमानों से अगर मांग लेते थे सर पे टोपी लगा के वही, तो बेहतर होता था। अब आई बात कैंडिडेट किसको सिलेक्ट करना, तो जुबली हिल्स इलेक्शन में मैं बता दिया आपको कौन क्या है कौन क्या नहीं है। मेरी नजर में नवीन यादव रॉडी शीटर नहीं है, ही इज ए सेक्युलर कैंडिडेट, लेकिन बीआरएस पार्टी बोल रही कि भाई नवीन यादव रॉडी शीटर है। नवीन यादव इज नॉट ए रॉडी शीटर, और ऑन रिकॉर्ड में उन्होंने कहीं भी रॉडी शीट नहीं है। अब रही बात बीआरएस की, एक कांग्रेस पार्टी का एक बीआरएस का कैंडिडेट जुबली हिल्स में जीतने से क्या पूरा तेलंगाना में माहौल बदल जाता क्या बोले तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये क्यों कर रहे बोले तो फिर एक टास्क है नेक्स्ट, यहाँ पर फरवरी में जीएचएमसी कॉर्पोरेशन का टाइम खत्म हो रहा, कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस आने वाले हैं, तो ये एक हार गए तो फिर कॉर्पोरेशन भी हार जाते हैं बोल के बीआरएस की नजर में फीलिंग है, कांग्रेस की नजर में भी फीलिंग है। इसके साथ साथ लोकल इलेक्शंस भी है, जैसा कि सरपंच, एमपीटीसी, जेडपीटीसी, अब शायद एक 10-15 दिन में उसकी भी डेट आ जाती। वो बीसी रिजर्वेशन के वास्ते 42% रिजर्वेशन के वास्ते कोर्ट को जाके मसला रुक गया था, फिर हाईकोर्ट उसमें फिर पूछे कब लगा रहे डेट, बोलो हम इलेक्शन लगाओ बोले, इलेक्शन को लगाओ बोल के नहीं बोले, 42% रिजर्वेशन रोको बोले, इलेक्शन कब लगा रहे इमीडिएट बोलो बोल के गवर्नमेंट को ऑर्डर दी हाईकोर्ट, अब उसकी डेट भी गवर्नमेंट को देना है। तो ये दो इलेक्शंस कंधों पे है दोनों पार्टियों के, ये दो इलेक्शन दोनों पार्टियों के कंधों पे रहने की वजह से ये सरगर्मी, ये हीटनेस, ये गर्म तोहफा जो भी चल रहा है यहाँ पे, इसलिए चल रहा। सो केटीआर साहब भी जब रोड शोज में आ रहे तो कांग्रेस गवर्नमेंट फेल हो गई, माइनॉरिटीज को नहीं देखे, माइनॉरिटीज को कुछ भी नहीं करे बोले, आप भी फेल हो गए केटीआर साहब, आप 12% रिजर्वेशन में फेल हो गए, आप दलित को मुख्यमंत्री बनाते बोले उसमें फेल हो गए, आप तेलंगाना के मूवमेंट में जो भी मर गए उनको जो है जमीन देते बोले उसमें फेल हो गए, और बहुत वादे हैं जिसमें आप फेल हो गए।
8 मसाजिद के शहीदों करने के उसमें अगर आप आज जो रेवंत रेड्डी को बोल रहे आप माफी मांगो मुसलमानों से, बोल के आप भी माफी मांगो। हाँ, हमारे से गलती से मसाजिद शहीद हो गई बोल के आप भी माफी मांगो। देखेंगे जब पब्लिक किसकी माफी को एक्सेप्ट करती। सो जुबली हिल्स की आवाम से मेरी गुजारिश है कि सोचिए, अब ये 2 दिन बहुत अहम रहते। आपके पास बीआरएस पार्टी वाले आते, आपके पास कांग्रेस पार्टी वाले आते, वो लोग पैसे देने की कोशिश करते, ये लोग पैसे देने की कोशिश करते। ये एक सीट से हुकूमत तेलंगाना में चेंज होने वाली नहीं है मेरी नजर में। लेकिन सोच समझ के आपका वोट डालिए। माइनॉरिटीज अहम है, जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में माइनॉरिटीज अहम है। माइनॉरिटीज की ताकत क्या है, मुसलमान की ताकत क्या है, मुसलमान क्या कर सकता, किसको जिता सकता, किसको हरा सकता। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी एक वजूद है आपके लिए। आज जितने भी लोग सर पे टोपी लगाकर आकर वोट मांग रहे हैं, पिछले 10 साल में नहीं है सो मोहब्बत आज बीआरएस पे आ गई, बीआरएस वालों को माइनॉरिटीज पे आ गई और दूसरे पार्टियों की माइनॉरिटीज पे आ गई। तो माइनॉरिटीज जुबली हिल्स में क्या रोल प्ले करने वाले हैं जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, वोटर्स, सोचो समझो किसको अपना कीमती वोट डालना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कांग्रेस को वोट डालो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं मागंटी गोपीनाथ, मागंटी सुनीता को वोट डालो, बीआरएस को वोट डालो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं रेवंत रेड्डी कुछ रखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं केटीआर की वापस लाओ। मैं एनालिसिस करने आया आपके सामने। दूसरे चैनल्स वाले आपके सामने सर्वे रिपोर्ट रख रहे, मैं एनालिसिस करने आया कि भाई तेलंगाना में इतनी गर्मी क्यों पैदा हुई इलेक्शन के लिए। सोचिए समझिए, अपना कीमती वोट किसको देना है 10 बार सोच के डालिए। और एक बार मैं बोल रहा हूं, ये एनालिसिस के वास्ते, ये प्रेजेंटेशन के वास्ते, ये बातचीत के लिए ना तो बीआरएस से कुछ मेरे को मिला, ना तो कांग्रेस पार्टी से मेरे को कुछ मिला। पिछले 15 दिन से मैं बेड पे था, अभी भी मैं बेड पे हूं। लेकिन कुछ मेरे दोस्त, कुछ मेरे अहबाब, कुछ मेरे चाहने वाले, कुछ J24 की नाजरीन मुझे मुसलसल कॉल्स कर रहे हैं कि भाई आप एक रिपोर्ट प्रेजेंट करिए। तो मैं रिपोर्ट प्रेजेंट करने आया। अभी भी मेरे पेट में शिद्दत से दर्द है, लेकिन मेरे चैनल के वास्ते, जुबली हिल्स की आवाम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, आपके सामने मुखातिब हुआ हूँ। आप सोचिए समझिए। और एक बार बोल रहा हूँ मैं, केटीआर साहब आप भी वो माइनॉरिटी से गलती करे, कांग्रेस पार्टी भी माइनॉरिटी से वो गलती करी, आप दोनों भी माफी मांग लो माइनॉरिटी से। देखेंगे जब पब्लिक किसको जिताती। सो देखते रहिए व्यूअर्स J24 न्यूज। आप सबके लिए शुक्रिया, मेरा ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए शुक्रिया। मेरे लिए दुआ कीजिए, अभी मेरे पेट में दर्द है, ज्यादा देर मैं ठहर नहीं सकता। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।